So this guy, he dated his stepsister What? for 3 months and did not know until their graduation. He did not I'm know so mean. she was his stepsister. So randomly, I'm just sitting. I just decide to post a story, share your, weirdest dating experiences, right? And I was surprised. I was pleasantly surprised With this because- story? because Oh my it God, cracked no. me up. Because I was pleasantly surprised to know that the people around me are living such eventful lives. Okay, so ये लड़का, ठीक है, this guy एक लड़की को डेट कर रहा है, ठीक है, कॉलेज में. They're dating 3 months, right? 3 months के बाद क्या होता है? ग्रेजुएशन में कौन आते हैं? मम्मी पापा. So उसकी बंदी ने उसको इंट्रोड्यूस कराया अपनी मम्मा से, and he instantly recognized this woman as his dad's ex-wife. Oh, so ex-stepsister. स्टेप सिस्टर ही हुई ना यार. बट एक्स स्टेप सिस्टर हो गई ना, डैड की अरे एक्स वाइफ यार. थी ना. Imagine how weird would that be? Oh my god, that's like incest. Not really, but it's weird. So and then I was so curious. I actually asked this dude कि आगे क्या होगा फिर? And he's like कुछ नहीं. We tried to be very advanced about it, and हमने कुछ time के लिए date किया, but it was just too weird. We broke Oh up. my god, ew. Yes, and That's I was very weird. It's weird. It's funny. It's so non-Indian, right? Like मुझे ये पता कि तू इतनी खुशी खुशी वाली स्टोरी कैसे सुना रही है. What is your kink or fetish about this? I was just like कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या वो वाली चीज़. Like I was very intrigued कि अच्छा like crazy. मतलब I'm sorry but I don't have such crazy stories to share. But do you have such crazy fantasies? No. तेरी क्रेजी स्टोरी से मेरे को एक और क्रेजी स्टोरी याद आई. तो आई हैव दिस फ्रेंड, मैं अभी रिसेंटली उससे मिली. ऐसे स्कूल का दोस्त, ठीक है, और वो अभी भी सिंगल है. तो उसने टिंडर डाउनलोड करके रखा हुआ है. टिंडर पे उसका एक लड़की के साथ मैच होता है, ठीक है. लड़की इज़ वेरी फॉरवर्ड इन एवरीथिंग, ठीक है. वो उसको टेक्स्ट करके बोलती है दैट लिसन, मेरे को टिंडर पे बात नहीं करनी, हियर्स माई नंबर, लेट्स व्हाट्सएप. So, the guy is all like, oh my god, like we're already on the next step without having to do much. तो उसने व्हाट्सएप पे उसको लिखा हे हाउ आर यू एंड दिस इज ब्ला ब्ला ब्ला. तो फिर वो लड़की उसको मतलब ना हाय ना हेलो कुछ भी नहीं, वो उसको पूछती है वेयर विल यू बी दिस फ्राइडे, ठीक है. तो लड़के के अंदर तो लड्डू फूट रहा है कि यार मतलब दिस इज गोइंग टू फास्ट एंड टू क्विक, एंड घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है, ठीक है. तो लड़के ने बोला कि आई विल बी इन बॉम्बे ओनली, बॉम्बे का है, ठीक है. तो वो कहती कि ओके आई हैव दिस क्लाइंट एंड शी इज़ एन इंडियन लिविंग इन दुबई, शी विल बी इन बॉम्बे on this night, living in a 5-star. If you want to be a male escort, she will pay you 6,000 rupees for 4 hours of your service. Did he go? No, he didn't. उसको रेट कम लगा. Can you I thought imagine? men wouldn't mind that. 6,000 Would they? rupees. अरे sleeping for money. Would Yeah, they? हाँ. They anyway want to sleep. They might as well make money out of it. Yeah. No? बट दिस वॉज टू, आई मीन मैंने मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे लोगों को कैजुअल डेटिंग ढूंढते हुए देखा है, बट मैंने टिंडर पे मेल एस्कॉर्ट्स ढूंढते हुए नहीं देखा भाई. I did not know that it's that common also. मुझे ये भी Like नहीं पता male था escorts and all. एग्जैक्टली नहीं, ये तो मुझे पता है मेल एस्कॉर्ट्स कॉमन थे, बट मुझे ये नहीं समझ आता था कि रिक्रूट कैसे होते हैं. आज पता लगा मैं जो टिंडर पे रिक्रूट हो रहे हैं मेल एस्कॉर्ट्स. Crazy. Imagine. Crazy. Yes. Crazy. And male escorts say, oh my god, I have too many of these weird dating stories, ठीक है. So a very very close friend of mine, she's married now, but एक phase था उनकी life में जहाँ पे she was actively dating on like Twitter बोल रही थी मैं, but Tinder and Hinge and Bumble everything. So this one night she swiped, क्या कहते हैं, हाँ होता है तो राइट करते हैं ना, हाँ. सो शी स्वाइप राइट ऑन दिस गाय, वेरी गुड लुकिंग, ठीक है, और ऐसे एकदम पोस्टर बॉय, 6-pack abs, good looking, tall, dashing, and texting पे English and all was also good, and she's like a fanatic for this, grammar fanatic. स्वाइप हो गया, मिल लिए, एंड वो ना जैसे तू और मैं अगर डेटिंग ऐप्स पे जाएंगे तो हमें डेट्स चाहिए, ठीक है. हमें कम से कम मिनिमम 6 डेट्स चाहिए होंगी कि 7 डेट पे हम उसको बोले कि चल ठीक है हाथ पकड़ ले टाइप, ठीक है. वो अलग माइंडसेट की थी उसको, ताकि ठीक है यार आई वांट अ नाइस कॉन्वर्सेशन, एंड आफ्टर द कॉन्वर्सेशन इफ इट लीड्स टू समथिंग, ठीक है, एंड गुड फॉर हर. भाई इट लेड टू समथिंग.
I mean, it led to the guy being invited to her house. ठीक है, they did blah blah blah, whatever, you know, everything. उसके बाद आई थिंक इन द मॉर्निंग, ठीक है, द गाय वॉज वेयरिंग हिज क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, एंड उन्होंने बस कैजुअली पूछा कि व्हाट प्लान्स फॉर द डे. तो उसने बोला कि नथिंग, आई जस्ट हैव अ क्लाइंट टू मीट एट दिस होटल, एंड मैं वहाँ पे जाऊँगा और उसके बाद जो भी है. एंड ही वॉज वेरी नॉनशलांट अबाउट इट. मतलब ऐसा नहीं था कि वो छुपाने की कोशिश कर रहा था. उसने बस नॉर्मली बोला कि हाँ, मेरे को एक क्लाइंट से मिलना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे जाऊँगा, और फिर उसके बाद मेरा 3 बजे रात के मेरे को किसी दूसरी क्लाइंट से मिलना है, बोथ फीमेल. तो मेरी दोस्त को थोड़ा सा हिंट आया कि क्लाइंट से मिलना है 5 स्टार में, फिर रात के 3 बजे दूसरी क्लाइंट से मिलना है एक और 5 स्टार में. मतलब उसको समझ नहीं आया. उसने पूछा बड़े डरते हुए कि व्हाट डू यू डू, एंड द गाय टर्न्स अराउंड एंड ही शर्टलेस. सो इट्स लाइक अ प्रॉपर करण जौहर फैंटेसी, ठीक है. शर्टलेस टर्न्स अराउंड और वो कहता कि आई एम अ जिगोलो. Yes, that explained अगर ये मेरे all साथ the हो जाए, orgasms. अगर ये मेरे साथ हो जाए, मैं संन्यास ले लूँ. I would legit take संन्यास if something like that was to happen to me. Fuck, this is crazy. This is wild. This is wild. उसके बाद उसको समझ ही नहीं आया कि वो अपनी डेटिंग प्रोफाइल पहले हटाए या फिर एक STD के लिए पहले चेकअप के लिए जाए. ये तो हो गया फाइल्ड वाइल्ड. ये तो हो गया वाइल्ड. अब हम फनी की बात करते हैं. तो देयर इज दिस गाय, इज लाइक, मैं डेट पे गया और वो अपनी चाची के साथ आ गया. आय हाय, oh my god. It was so funny, and obviously I was like again very intrigued. तो Why मैं बोला, चाची? भाई, हाँ तो सुन तो obviously कोई लेके थोड़ी जाना चाहता है चाची को. तू लेके जा सकती है Listen, प्लीज. अब मैं तेरे को लेके जाऊंगी अगर जाना. अगर कल को मैं अनअवेलेबल हुई और एकदम ऐसे यू नो लाइक गन पॉइंट पे तेरे को जाना पड़े, यू आर वेरी केपेबल ऑफ टेकिंग योर मदर और टेकिंग योर छोटा भाई बहन विद यू इज अनदर थिंग. टेकिंग योर चाची विद यू इज अ होल अदर बॉलगेम. प्लीज, ठीक है, आई प्रेफर टेकिंग यू इफ यू आर नॉट देयर, गरिमा, एंड if she is not there, I don't know. and then you want to know why, you know, you're not dating somebody. You take people on dates with you. I like crowd. not Then don't blame the guy if he wants a crowd at some other point in the relationship. not there. But I like crowd, yeah. ठीक है, the more the merrier. Anyway, so ठीक है, so this guy is like कि भाई मैं डेट पे था, तो मैं एक लड़की से बातचीत कर रहा था, एंड हमने प्लान बनाया कि चलो अब मिलते हैं. काफी टाइम तक चैट हुई, ठीक है, काफी टाइम तक बातें हुई, ठीक है, और फिर उन्होंने डेट का प्लान बनाया. अब वो पहुंच गया लड़का, एंड ही इज वेटिंग विद फ्लावर्स एंड एवरीथिंग, एंड दिस गर्ल इज ऑन द वे उसको मिल गई उसकी चाची. एंड द चाची इज लाइक, कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, रेडी हुई हुई है. एंड शी इज लाइक, हाँ चाची, तो दोस्त से मिलने जा रही हूँ, मेरा ऐसे दोस्त है, पुराना है, जानते हैं बचपन से, एंड ऑल ऑफ दैट. और फिर वो अपनी चाची को, उसकी चाची ने बोला, अच्छा मैं भी चलूंगी, टेक मी विद यू. सो शी क्विकली टेक्स्टेड द गाय दैट, लिसन, मेरी आ रही है चाची साथ, ठीक है, और तू है मेरे बचपन का दोस्त, नाउ यू प्ले अलोंग. शी शोज अप विद हर चाची, एंड दे स्पेंड द एंटायर डेट cooking up, like fabricating stories about their friendship that never existed. Oh my god. I mean, how funny is that? Like, I couldn't stop laughing after reading this. Did the girl get the next date? I have no idea. Oh my god, you I should have no asked. idea. I'm gonna ask. But this is like a nice cute story. This is a very cute story, and I think she should get a first date. यार, इसमें क्या है? हाँ, second date I mean. मतलब हाँ, सही, second date. हाँ. ये तो किसी के भी साथ हो सकता है ना. Imagine you going somewhere, your papa's like, मैं भी चलता हूँ साथ में. अरे यार, पापा वापा सब ठीक है, मतलब चाची बोल रही है, अरे अपने बच्चों के दोस्तों से मिलने जाओ ना, दूसरे उसमें क्यों जा रहे हो? It's funny, but ठीक है, maybe they're like, you know, proper. Indian families. Yes. Yes. So, तू कभी ऐसे डेट्स पे नहीं गई जहाँ पे your experience has been very ew or what? see, EU is like bad experience, right? But weird experience मेरा कभी नहीं. मेरा EU experience भी नहीं हुआ, but weird. Ooh, experience. We're gonna talk about those some other time. Okay. Another super funny story. And also, पता है, all of the people who replied to me were guys. या तो लड़कियों के पास weird stories है नहीं बताने के लिए, या फिर वो बताना चाहती नहीं है. क्योंकि उनके पास हॉरर स्टोरीज है ना. could be. So मेरे पास सिर्फ लड़कों के आए हैं मैसेजेस, और वो इतने फनी थे. And this other dude, he's on a date. He's on a date with this girl. Everything's nice. They're talking. They plan a second date.
सेकेंड डेट है, दिल्ली के कैफे में बैठे हुए हैं, बातें चल रही है, पीछे से एक लड़का आता है, लड़के ने लड़की को पहचान लिया है, ठीक है, एंड ही इज लाइक तू क्या कर रही है यहाँ पे? इज लाइक मैं बस फ्रेंड के साथ हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एंड दिस गाय हु सिटिंग इज लाइक वियर्डेड आउट कि क्या चल क्या रहा है, और बोल रहे कुछ नहीं मेरा दोस्त है, एंड दिस गाय इज लाइक भाई मैं इसका फियांसे हूँ, और वो बोल रहे नहीं ये मेरा दोस्त है, झूठ बोल रहे हैं, अरे बट मैं इसका फियांसे हूँ, वी आर एंगेज्ड, अरे भाई ये झूठ बोल रहे हैं, तुम क्यों कर रहे हो ऐसे, तुम्हें किसने भेजा है? एंड दिस गाय इज लाइक वेट, opens his phone, takes out their engagement pictures, shows to this guy. And this guy is like, what the fuck is even happening to me? Later on, and obviously this guy, he's embarrassed. There's a whole drama that's been created. This guy leaves. The girl there, Which one leaves? The fiance. The fiance Okay. leaves. The poor fiance. He's like, मैंने बहुत कटवा लिया, अब मैं जा रहा हूँ. ठीक है? And this girl, he's like, listen, वो सिर्फ मेरा दोस्त था, and he's like, are you fucking crazy? मैं थप्पड़ ही थप्पड़ बजाऊंगा तेरे नीचे, भाई तू engagement pictures दिखा के क्या? What the fuck are you even saying? ब्रेकअप करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, casual है. And then this girl's like, I'm not sexually satisfied. Oh my god. ओहो, इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई हैं यहाँ पे. And then I asked him, मैंने कहा अच्छा एक बात बता, तूने तो छोड़ दिया होगा, प्लीज मेरे को बता, उस लड़के ने उसको वापस लिया, उनकी हुई फिर शादी? He's like, no, she's married to somebody else now. I feel bad for the guy she's married to now. Yeah, obviously, but I mean, हो यार, ये हाँ ज्यादा यार, ये बुरा था, ये ज्यादा brutal देखिए ये फियांसे के लिए बुरा था, इस लड़के के लिए फनी था, वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस था, obviously, like, बट उस लड़की के लिए भी बुरा था, बिकॉज़ वो क्या देख रहा था, वो देख रहा था that people like this are out there in the market. Yeah, that is true. But long term के लिए, I believe it's a very fun story to tell. I mean, clearly it's fun. So long term, it's a fun story to tell. But of course, in that moment, whatever, you'll feel weird. But bhai, the poor fiance. Oh my god. So I sincerely want my mummy papa to watch this episode. अभी तक उन्होंने एक भी नहीं देखा, because I think इसके बाद वो मुझे शादी के लिए नहीं बोलेंगे. क्यों? वो बोलेंगे हाँ तो हम भी नहीं satisfied. You know, you cannot come to my house after this. Yeah, I know that. I think नहीं दिखा पाऊंगी अब मैं. ओके, तेरे को याद है कि कुछ साल पहले मैं ऐसे किसी इंसान को डेट करना मैंने नया नया शुरू ही किया था, और हम सिर्फ 1-2 डेट्स पे गए थे तब तक, एंड दे वर ऑल नाइस एंड फन. ठीक है, दिस वन नाइट आई रिमेंबर इट वाज बर्थडे. ठीक है, हमारा मेल फ्रेंड है एक, उसका बर्थडे था, और तेरे को पता है कि उसके बर्थडे कैसे होते हैं, उसके घर पे ही कॉल्स दी इंटायर जनता ओवर देयर, राइट? सो मैं अपनी डेट ख़त्म करके डायरेक्टली वहाँ पे उसके घर पहुँची थी, राइट? एंड हम लोग चिल कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंड बीच बीच में ही इज टेक्सटिंग मी कि यू नो हाउ इज इट गोइंग, वेर आर यू, ब्ला ब्ला ब्ला, आई मिस यू एंड एवरीथिंग. एंड वो भी किसी और पार्टी पे था अपने कजन्स के साथ. ठीक है, अब मैंने उसको, मतलब आई थिंक बीच में कोई लोकेशन शेयर हुई थी या कुछ भी, बट मैंने उसको इनवाइट नहीं किया था. मैंने सेफ्टी पर्पज से, इवन तो मुझे कोई भेजने की सेफ्टी थी नहीं, बिकॉज इट वॉज माई फ्रेंड्स हाउस, बट फॉर सम रीजन दैट आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, ही आस्क्ड मी कि अच्छा ठीक है, लाइक यू नो शेयर लोकेशन विद मी जस्ट इन केस, एंड जस्ट सो दैट यू आर सेफ, एंड व्हेन यू गो बैक आई नो. आई सेड ओके. मैंने उसको लोकेशन भेज दी. राधिका, आधे घंटे बाद द गाय शोज अप एट माई फ्रेंड्स प्लेस. ठीक है, मुझे याद आ रहा है. एग्जैक्टली, ही वॉज पिस ड्रंक. And he came with somebody. Yes, he came with his sister, cousin sister के साथ आया था. ये बहन भाई चाचा चाची लाने का क्या रिवाज है भाई? आई डोंट अंडरस्टैंड ब्रो. वैसे यू नो व्हाट, मुझे अभी तेरी स्टोरी सुनते सुनते याद है कि शिट वो भी तो था. इसका नाम क्या था? विल बीप इट. आई हाय हाँ. एंड दिस डूड he's known you for what, like 2 weeks, 1 month? Yes. है ना, कुछ ऐसा था. 2 हफ्ते 1 महीने का रोमांस था. एंड दिस गाय हैज द ऑडेसिटी to come to our best friend's birthday party and Pick up a guitar first. Pick up a guitar, do whatever, ठीक है, and tell Sadhika's bestest friend बचपन की, जिससे कोई, मतलब आई थिंक तेरे मम्मी पापा भी मेरे से इस बात पे आर्ग्यू नहीं कर सकते कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साधिका की लाइफ में. एंड he's like, but I love her more. Yeah. Fuck, like what? Oh my god. I honestly wanted to kick him in the balls that day. Yeah, I know.
But I kicked him in the butt because, 2 days later I broke up with him. But that was my weird date experience. Actually, it was a non-date. He forced himself. He Yeah, gate crashed our friend's birthday. He came पिस ड्रंक. उसकी बहन वहाँ पे जाके दूसरे लोगों से मिंगल करने लग गई. उसने गिटार उठाया. उसने एक बहुत ही गंदी आवाज़ में मेरे लिए गाना गाया गिटार पे. ठीक है. और फिर जब तू उससे बात करने की कोशिश करी थी टू मेक हिम फील कंफर्टेबल एंड ऑल्सो टेल हिम दैट लिसन अदर पीपल आर नॉट एंजॉइंग दिस अरिजीत सिंह लाइव लाइट कॉन्सर्ट. तो उसने तेरे को एक इस कॉन्टेस्ट में एंगेज किया कि आई लव हर मोर एंड यू सेड यू लव मी मोर एंड दैट हैपेंड. Firstly, the guy has no idea how lucky he was because trying to talk to somebody just to make them comfortable is like honestly very, very, very rare. It does not happen. And then this guy had the audacity to do this. Like, honestly, this is for literally all guys. You never tell the best friend that you love her more because the best friend has the ability to. पुल अ सोनू का टीटू ऑन Yes, यू. yes, we Yes. always can. We're good people, we don't do it. यस माइनस और पॉइंट्स मतलब मिल गए थे उसको उसी वक्त. मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, साधका ने खुद कर दिया. बट yes, that would have been my next move. Exactly. अगर वो एक और बारी आके मुझे ये चीज बोल देता. नहीं. और उसके बाद सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग ये था कि जब मैं उसको बाहर ऐसे गार्डन एरिया में लेके गई कि लिसन यू नीड टू गो फ्रॉम हियर यू आर वेरी ड्रंक. ही ट्राइड टू सिट ऑन अ चेयर दैट वाजंट देयर एंड ही फेल राइट ऑन हिज एस. I didn't know this. Yeah. Because I was inside Garam and I was making fun of you. Oh my god. I really wanted to help him, but I was so embarrassed. And I did help him, but boy. Wow. Yeah. So it's not as, like as good as This getting is my obviously chachi along. Yeah. But yeah. But yeah, weird guy, weird dude. Okay, it's not a weird dating experience, definitely a weird dude. Yeah. Yeah. So this other guy is like so funny. He's like 2 महीने बात हुई, वाइब मैच हुई, मिलने का प्लान हुआ और फिर जब मिले तो पिक्चर मैच नहीं हुई. Catfished. Yes. Oh my god. I think that तो happened. I think it's very क्या common. बिल्कुल ही मैच नहीं हुई या फिर वैसा था जैसे हम मेकअप लगा के थोड़े बेटर लगते हैं? नहीं, मैं उससे सब फर्स्टली तू लगती है. तू नहीं लगती. मैं ऑन कैमरा ही लगती. मेकअप के साथ प्रॉब्ली बेटर, बट ऑन कैमरा तो मैं नहीं लगती. तो तू ये बोल रही है कि मैं मेकअप के बिना अच्छी नहीं लगती? Guys, that's not what I said, Sadhika. weird podcasting experience की पहली स्टोरी यहाँ से ओरिजिनेट हुई है. I did not say that. I hate you. I did not say that. स्क्रीन की बात हो रही है, मेकअप की बात नहीं हो रही है, बिकॉज पिक्चर्स स्क्रीन ऑफ कैमरा, राइट? सो आई एम जस्ट सेइंग यू लुक बेटर ऑन स्क्रीन, आई डोंट लुक गुड ऑन स्क्रीन. स्टोरी सुनाओ. तो स्टोरी ये है कि आई थिंक ये तो बहुत कॉमन है. उससे हाँ, तो मैंने उससे पूछा यार 19-20 का फर्क तो नॉर्मल है, चलता है यार, फिल्टर का जमाना है, एवरीबडी पैरिस फिल्टर, टू द वो क्या टू द रेस्क्यू. So he's like, अरे नहीं यार, it was not 90-20, it was 10-20, it was too bad. Like the girl did not match her pictures at all, and I obviously got weirded out. I left. The last one is sort of creepy. It's Okay. weird. Okay. It is nowhere close to what you have discussed, but I like it already. I don't know how you're gonna feel about it. And this guy's like, I made a plan with her. I met her. She smelled so strong. I ran away. As in like Exactly. So I did not know. I was like, what are you talking about her perfume? Because ऐसे तो बहुत लड़के मुझे छोड़ के चले जाएंगे, right? Because it's just about strong perfume and it's giving you a headache. for the viewers she means fragrance. लड़के छोड़ के चले जाएंगे because No, fragrance. I'm just known for strong. wearing very strong perfume. That is why. So then I was like, okay, tell me more. And this guy's like, so we were chatting. This girl's damn beautiful. And this guy also apparently runs clubs in Delhi. ठीक है? So he's, talking to a damn beautiful girl. These guys decide to meet at Cabo. And she shows up. And these guys hugged, obviously. And apparently the woman had a lot of body odor. And this guy, he got weirded out. He excuses himself to the washroom. उसको washroom में एक दोस्त मिल गया और उससे भाग गया. Oh my god. Like, I think that's very mean. It's weird. I picked it up because it's weird, but I think it's very, very mean also. To smell that bad or to run away? To run away, yaar. To run away. But अच्छा तू बैठेगी एक इंसान के साथ? No, listen. I was like, मैंने यही बोला कि listen, women tend to have more body odor than men. It's very common in women, and sometimes you can shower with good products, be clean, put perfume, and still you're sweating once you step out of the house. Delhi summers, and you probably can get the odor back. So whatever. And he was like, no, Radhika, it was bad hygiene, and I just left away. Like I just ran away. Ew. Yeah. Weird. Yeah, very.
oh, one story I'm missing, and this I did not find out from my Instagram follows. This is my friend's story, my very good friend's story. He matched with a girl on Hinge, ठीक है, and Hinge पे वो लड़की से मैच कर गया, बातचीत चल रही है. The girl is fresh out of a breakup, ठीक है, so एकदम ready to be pounced on. रीबाउंड सीन है, ठीक है, लड़की इधर भी है, लड़की उधर भी है, लड़की यहाँ से हार्ट ब्रोकन है, यहाँ से डिस्ट्रैक्ट होना चाह रही है, राइट, ऑल ऑफ दैट. एंड बातचीत चल रही है. अब रीबाउंड फेज में क्या होता है, आप यहाँ पर भी थोड़े वॉनबी ज़्यादा हो जाते हो, राइट. सो दिस गर्ल इज सडनली, उसका बर्थडे है, वो उसके ऑफिस में केक भिजवा रही है, ठीक है, वो उसके ऑफिस में केक भिजवा रही है, वो उसको खाना भिजवा रही है. नेक्स्ट थिंग दिस गाय नोज इज, उसको एक लड़के का फ़ोन आता है. हाँ भाई, कौन है तू, क्या कर रहा है तू मेरी बंदी के साथ, खाना मंगवाता तू लड़कियों से, खाना मंगवाता है. तू ऑफिस जाता है और तू लड़कियों से खाना मंगवाता है, केक मंगवाता है. अपने पे आओ क्या. And now this guy, he's not like he's not your typical Delhi boy कि माचो मैं भी मार दूंगा, आजा मिलते हैं 4 लड़के, तू 4 लड़के, मैं कॉम्प्रो करेंगे. 4 लड़के बुला के कॉम्प्रो नहीं करते. इवेंचुअली वही होता है, लोग बुलाते हैं इसलिए. असली हाथापाई इज ओनली व्हेन इट्स, लड़कों की भाषा में क्या बोलते हैं इसको, मैन टू मैन, वन ऑन वन, आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट्स कॉल्ड. ठीक है, नाउ दिस इज नॉट अ टिपिकल दिल्ली गाय, ठीक है, दिस इज लाइक नाइस शरीफ गाय, ठीक है, जो नहीं पड़ेगा लड़ाइयों में. एंड पर लड़की के चक्कर में तो पड़ेगा. नाउ दिस गाय इज लाइक, ही इज वियर्डेड आउट एंड इज लाइक, भाई मैं क्या हो क्या रहा है. एंड देन ही कॉल्स द गर्ल कि भाई हु इज दिस गाय, कौन है ये, क्यों मुझे फ़ोन कर रहा है. वो मेरा एक्स है, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, वो मुझे हरास कर रहा था, आप प्लीज़ उससे बात कर लो. ठीक है, और उसने बोला हाँ भाई, बट नंबर कैसे, मैंने दिया है, वो मुझे हरास कर रहा था, मैंने नंबर दे दिया ब्रो. एंड देन जो लड़की है वो इधर, ठीक है, एकदम पास इन द पार्सल चल रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में. एंड so basically that guy would hack into the girl's phone, not hack, like open the girl's phone, read all the messages. उसको सब पता था उनकी क्या बात हो रही है, बेबी सोनू मोनू क्या चल रहा है, कब किसको खाना जा रहा है. And then just like sorry baby. And, to the ex. No, to this guy, to the new guy. To your I'm guy. really sorry. I'm gonna leave him. I'm sorry about all this bullshit. I'm gonna cut him out completely. And you are the one. You are my future. ठीक है? And then they go out. They make out. Everything. The next day, and he's like, चल ठीक है, जितना हो गया बीटी हो गई, men in love, ये बीटी जितनी हो गई है कोई बात नहीं, टॉक्सिक एक्स था, परेशान कर रहा था, he's done and dusted, now we gonna make out. They made out. The next day, the ex sends him a picture of them ऐसे roaming around in the mall. Oh my god. So I don't know what to make of all of this, but it was super weird. थ्रीसम में इनवाइट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है. बिकॉज आई थिंक बोथ ऑफ दोज पीपल हैड सम मेजर इश्यूज. Yeah, I just know that's super weird. Like when he told me the story, I was like, really, I feel bad for you. I'm sorry. Do you think it's make believe? Sadhika, please, I think you're very mean. I'm not. I'm just skeptical. The devil in you is growing by the day. Seriously. I know. I love it. ठीक है गाइस, तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी absurd, weird, scary, borderline toxic dating stories हैं, so we would love to read them. Mention them in the comments below and we'll take them up maybe in the next episode.